Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Please everybody, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna. So, welcome all of you to this Saturday's session. This class is happening combined. We have two classes over here, Light of Bhagavad and one is from Self Excellence. So, today this is the combined class. So, today topic is voice is proper. Na? So, today topic is Dhyan Yoga. So, we'll discuss about it from Srimad Bhagavad Gita, chapter 6, basically. And also, most probably from the purport of Srila Prabhupada, which he has given in chapter 6. And before I start, we should chant the prayer. Please chant with me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
So before I start, I would like to ask some question from you. So I think you should sit ahead. You people should sit ahead. Actually, it's not looking very nice. So when we do kirtan, if you are repeating, just repeating Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So it's take away all our sins. So that's why we should repeat. You are not repeating. Actually, very enthusiastic. So I would like to ask some question first, and then we will start. How many of you are chanting? ओके अरे मैं हिंदी में बोल सकता हूँ डोंट वरी so as per the audience we are starting in Hindi now. Okay, so प्रभु जी जब यहाँ पे बैठते हैं लैपटॉप के सामने सो बोलते हैं लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस कमिंग फ्रॉम दिस स्क्रीन. एक्चुअली आई एम फेसिंग द सेम. तो हम हिंदी में बोलेंगे. तो आप लोग में से कितने ऐसे भक्त हैं जो जप करते हैं? ठीक है, वेरी नाइस. कितने ऐसे हैं जो 16 माला का जप करते हैं? सो 16 माला. ओके, सो ये ध्यान योग है, ऐसा टॉपिक लिया है. एक्चुअली मैं भगवद गीता पढ़ रहा था. सो यूजुअली आई यूज्ड टू रीड, मतलब मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ. एक बार खत्म हो जाता है फिर अगेन आई मतलब मैं शुरू प्रारंभ करता हूँ. सो मैं 6वां अध्याय पढ़ रहा था और मुझे बोला गया कि आप सैटरडे को आके आप लोग से कुछ बताएं. तो मैंने इसलिए ध्यान योग ही ले लिया. ठीक है, सो हम ध्यान योग के बारे में डिस्कस करेंगे. बेसिकली आजकल हमारे जीवन में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन है, बहुत सारी एंजाइटी है ना. और जब हम जाते हैं उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए, सो बाहर वर्ल्ड में, आउट ऑफ दिस कृष्णा कॉन्शियस वर्ल्ड, लोग बोलते हैं ध्यान करो ध्यान करो, ऐसा बोलते हैं, मेडिटेशन, है ना. लेकिन उनको पता नहीं है, जो लोग ये बोलते हैं कि ध्यान करो, उनको पता नहीं रहता कि किस चीज का ध्यान करो. सो कई जगह ऐसा होता है, वो बताते हैं कि आप बैठ जाओ चुपचाप और ध्यान करो, सोचो. अब कोई ऐसा व्यक्ति बैठ के सोचेगा तो क्या सोचेगा? सोचेगा कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, उसको क्या करना चाहिए भविष्य में, भूत वर्तमान, उसके जीवन की घटनाएं सोचेगा. और हम जैसे लोग क्या सोचेंगे, जो नेटफ्लिक्स और वगैरह वगैरह देखते हैं, वो क्या सोचते हैं कि उस सीन के बाद क्या हो सकता था, उस सीन के बाद क्या होगा, उस स्टोरी में क्या हुआ. हमारा डिस्ट्रैक्शन वो है मोस्ट ऑफ द टाइम. आप लोग नेटफ्लिक्स देखते ही होंगे नहीं? सो आप लोग ऑलरेडी ध्यान योगी हैं ऐसा. लेकिन ऐसा आउटर वर्ल्ड में हो रहा है. एक्चुअली हम देखते हैं बहुत, नेटफ्लिक्स नहीं देखते तो बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है. एक्चुअली हम प्रैक्टिकल बात करेंगे एंड प्रैक्टिकल बात करके हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने क्या बताया है, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि अपने जीवन में ध्यान योग को उतारे और अपना जीवन जो है सफल बना सकते हैं. ये जो पूरा आंदोलन है कृष्ण कॉन्शियस आंदोलन, वो काफी व्यक्तिगत है. व्यक्तिगत चेतना की शुद्धि तथा व्यक्तिगत रूप से भगवान की प्राप्ति. लेकिन ये व्यक्तिगत असंभव है. व्यक्तिगत मतलब पर्सनली ये परफॉर्म करना असंभव है. इसलिए इसको दिया गया संकीर्तन मूवमेंट, संकीर्तन आंदोलन. जब बहुत सारे लोग मिलकर कीर्तन करेंगे, जैसे हम कीर्तन कर रहे थे, सो उसके द्वारा हम व्यक्तिगत उन्नति प्राप्त कर सकते हैं. सो जैसे कि मैंने बताया बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है. सो जैसे लोग बोलते हैं कि ध्यान करिए ध्यान करिए, पर उनको पता नहीं है ध्यान क्या है. इवन दो अगर हम ये बोले कि नहीं हम भगवद गीता से बात कर रहे हैं, तो बाहर भौतिक संसार मतलब बाहर के वर्ल्ड में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास खुद की भगवद गीता है.
हमारे पास खुद की भगवत गीता है। आप लोग में से बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं कि बहुत सारे लोग जाते हैं, है ना? सो हम बोलते हैं, बहुत सारे कई बार लोगों को बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं मेरे घर पे भगवत गीता है, मेरे पास भगवत गीता है, मेरे पास गुरु है। सो जब आपके पास भगवत गीता है, गुरु है, तो आप इतना परेशान क्यों, भाग क्यों रहे हो, दौड़ क्यों रहे हो? भगवत गीता मतलब आपने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, है ना? पर उनको सही परंपरा से, सही जगह से उनको ज्ञान नहीं मिल रहा है, सही भगवत गीता नहीं मिल रही है। सो ध्यान योग के माध्यम से हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि योग क्या है, और स्पेशली योग का जो स्टेज होता है वो क्या है, बहुत सारे योग की जो विधियां हैं वो क्या है, और फिर हम चर्चा करेंगे कि ध्यान योग क्या है, और श्रील प्रभुपाद जी ने ध्यान योग को कैसे बड़े साधारण तरीके से दिखाया है, और उससे हम प्रैक्टिकल तौर पर अपने जीवन में उतार सकते हैं, भगवत गीता समझ सकते हैं, अपना जीवन तो सुखी बना ही सकते हैं, जीवन के अंत में हम भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं, है ना? सो ध्यान क्या है, कोई बताना चाहेगा ध्यान क्या है? फोकस, ओके ओके, मेडिटेशन, वेरी नाइस। सो एक्चुअली ध्यान एक टर्म है, वर्ड है, मेडिटेशन, ध्यान करना ना, वो अपने आप में एक्चुअली कंप्लीट है, बट एट द सेम टाइम कंप्लीट नहीं है। अगर आप उस मैसेज को, उस वर्ड को अच्छे से एक्सेप्ट करते हो, अच्छे बोनाफाइड जगह से, जहाँ पे लोगों को पता है कि ध्यान क्या है, तब आप उसका सही इस्तेमाल कर सकते हो अपने जीवन में। लेकिन अगर आप सोचते हो मेडिटेशन मतलब बहुत सारा मेडिटेशन है, आप बैठ के सोच रहे हो, जैसे मैंने बताया, कुछ लोग बोलते हैं कि सामने एक दीपक जला दो और दीपक जला के उस पर मेडिटेट करो, ठीक है? सो दैट इज नॉट मेडिटेशन एक्चुअली, हम ऐसा कर नहीं सकते। आप कितना देर तक बैठ सकते हो? आप कभी बैठते हो ऐसे अलती बल्ती मार के, बोलते हैं ना बैठना, आप कभी बैठते हो? कितना देर बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते हो। 4 घंटा ध्यान कर सकते हो क्या आप? लेकिन कुछ लोग ऐसा जबरदस्ती करवाते हैं अभी भी। वो लोग बोलते हैं कि आप बैठिए, 6 बजे बैठिए और 10 बजे उठिए, और फिर थोड़ा प्रसाद लीजिए, थोड़ा रेस्ट करिए, फिर बैठिए वैसे। अब बैठे बैठे आपको क्या हासिल हो जाएगा? दुनिया कितनी प्रैक्टिकल हो गई, हर चीज आपको दिख रहा है, सामने से दिखना चाहिए, पर वो बैठे रहते हैं, और फिर 10 दिन का कोर्स होता है, 10 दिन का कोर्स करिए और फिर निकल जाइए। लेकिन हम भगवत गीता के माध्यम, तो ध्यान ये हो गया। और फिर योग क्या है? करेक्ट, यूनियन किससे? यस, यू पीपल आर वेरी एडवांस एक्चुअली। बट बाहर के लोग योग को कैसे देख रहे हैं? एक्सरसाइज। सो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें परपट में बताया है कि परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। जैसे यूनियन है ना, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। लेकिन आजकल के लोग कैसे कर रहे हैं? बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं, है ना, एक्सरसाइज करते हो, और फिर कुछ लोग डायरेक्टली उसको योगा नहीं बोलते हैं, पर फिट रखते हैं, राइट? और फिर कुछ लोग योगा करते हैं, वो भी योगा किस पर्पज से करते हैं? कि उनको फिट रहना है, और फिट रह के क्या करना है? वेरी नाइस। सो बाहर के लोग ऐसे, हम मतलब बाहर के लोग नहीं, हम ही लोग ऐसे समझते हैं, है ना? हम योगा को ऐसे समझते हैं कि हमको फिट रहना है, और फिट रह के फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, एक्चुअली इंद्रिय तृप्ति करना है, इंद्रिय भोग करना है। हाँ, उस वही सब पे हम बात कर रहे हैं। पावर योगा है, विपश्यना है, और बहुत सारी चीजें हैं। सो ऐसा लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको है योग विधि से करनी चाहिए। अभी उसमें बहुत सारे स्टेज हैं, और योग के जो स्टेज हैं, जो भगवत गीता के हिसाब से है, वो है अष्टांग योग, और उसमें 8 स्टेजेस हैं। और उसका नाम क्या है मैं बताता हूँ आपको, मुझे भी याद नहीं है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। सो हम बात करने वाले हैं ध्यान पे। अब देखो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार जो है वो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है, शरीर से रिलेटेड है, वो हम शरीर के द्वारा परफॉर्म करते हैं। और जो ध्यान, धारणा, समाधि है वो मन और आत्मा के स्तर पे है।
मेडिटेशन हम बॉडी से क्या बॉडी से परफॉर्म करते हैं, बट हम अपने आत्मा से परमात्मा का सही जो युक्त होने की विधि है तो उस पर फिक्स होकर करते हैं। सो ये हो गया योग। अब देखेंगे हम कि जो ध्यान योग हम करते हैं, जैसे कि जैसे मैंने बताया बैठ के लोग बहुत सारा ध्यान करते हैं, सोचते रहते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी ने क्या दिया है ध्यान योग के बारे में, हम ध्यान योग कैसे करते हैं। सो आप लोगों में से कितने को पता है ABCD फॉर्मूला, कृष्ण कॉन्शियसनेस ABCD? ठीक है, 2 लोगों, ठीक है, आप बताइए। For association, book reading, हम्म, chanting, that सो श्रील प्रभुपाद जी ने जो भगवान ने ध्यान योग बताया था वो भी यही बताया था, लेकिन ये जो कलयुग है उस कलयुग में हम ध्यान कर ही नहीं सकते। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम 2 घंटे तक लगातार बैठ नहीं सकते, और बैठेंगे तो हमारे पैर में दर्द होने लगा। हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, पैर में दर्द होने लगता है। आप उठोगे तो फिर दिक्कत होगा, बहुत सारा कमर में प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना। लेकिन हम ध्यान कर सकते हैं प्रैक्टिकल वे में, जैसे कि बताया एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब होता है संग, और संग किसका करना है? डिवोटीज का। बुक रीडिंग, कौन सा बुक रीडिंग करना है? फॉलोअर्स। चैंटिंग, क्या चैंटिंग करना है? एक साथ चैंट बोलेंगे वैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हमको चैंटिंग करना है, जप करना है। अब जप कैसे करना है? जो बोलना है वही सुनना है, जो सुनना है वही, यही हमारे जप की विधि है। अब देखो, अगर आप 5 मिनट बैठ के ऐसा बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, अब जो बोल रहे हो वही सुन लो, जो सुन रहे हो वही बोल रहे हो। अब इसके बीच में हमारा मन बहुत भागता है, मन भागता है ना। इधर भागेगा, ये सोचेगा कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, कल क्या होगा, उसने क्या बोला, मैं रात को कैसे सोया था, जगह नहीं है, ये नहीं है, वो बहुत सारी चीजें हमारे मन में आती रहेगी। लेकिन अगर हम ध्यान पूर्वक जप करें और वही सुने, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, वही सुने और वही बोले, तो धीरे धीरे हम देखेंगे दिस इज नॉट द वन टाइम प्रोसेस। एक बार का नहीं है कि एक बार जप कर लिया और आपका माइंड फिक्स हो गया। आप एक बार पढ़ते हो, कोई टॉपिक याद होता है क्या? आप बहुत सारे स्टूडेंट है ना, हम बहुत सारी चीजें हम एक बार करते हैं, हमको क्लियरिटी नहीं आती है बहुत सारी चीजों में, है ना। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं या ऑफिस में ही कोई मीटिंग हुआ तो आधा स्किप हो जाता है, माइंड कहीं और चला जाता है। सो जब का जो नियम है वो एक बार का नहीं है, हमको बार बार, इसलिए 16 माला कहा गया है। 16 माला जप करना है, सुबह उठकर ध्यान पूर्वक बैठ, और कहा क्या कहा गया? ध्यान पूर्वक। और ध्यान क्या करना है अपने, जो बोलना है वही सुनना है, जो सुनना है वही बोलना है। सो एक बार क्या हुआ, मायापुर में श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, और उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी से बोला, उनको पता चला कि हम जप के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, केवल जप के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और हमारी परंपरा में एक आचार्य आते हैं हरिदास ठाकुर, वो है ना, एक दिन में 3 लाख बार भगवान का नाम जप करते थे। अब जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें भगवान का नाम 16 बार आता है। आपको पता है 16 बार आता है। हरे कौन है और कृष्ण कौन है? हाँ, और राम कौन है? ओके, सो जो हरे है वो भगवान की शक्ति है, और शक्ति स्वरूपा कौन है? राधा रानी। और कृष्ण कौन है? यस, शक्तिमान। और राधा रानी कौन है? भगवान की शक्ति है। सो जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हम भगवान के लिए, भगवान का प्रेम अपने हृदय में जागृत करते हैं। श्री प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं कि when we chant these names we attract Lord श्री कृष्णा एंड हिज एसोसिएट श्रीमती राधा रानी। उनका जो प्रेम है हमको प्राप्त होता है
जब हम ये भगवान के नाम का जप करते हैं। तो मैं बता रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे और उन्होंने ये विधि जान लिया। देखो प्रैक्टिकल है, बहुत सारा हम चीज सुनते हैं कि हम बॉडी नहीं है, हम सोल हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और जो हमारा मन है एक दिन हमको धोखा देता है, कहता नहीं तुम कर सकते हो अकेले और तुम ही प्राप्त कर लो भगवान को। और हम जाके जप करना, हम सोचते हैं कि मैं घर जाके जप करूंगा। ठीक है, अब लोग जब काउंटर पे कितने लोग सेवा किए, सो बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं घर जाके जप करूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे जहाँ पे तुमको माला मिला, कुर्सी बैठने का कुर्सी मिला, यहाँ पे देख रहे हो कि सामने वाले लोग जप कर रहे हैं, वहां तुमने ना बोल दिया, तुम घर पे बैठ के जप करोगे, इतने बड़े योगी हो। सो ऐसा होता है कि मन हमारा हमको एक्चुअली इस अध्याय में, देखो ये ध्यान योग का जो अध्याय है बहुत बड़ा है, उसके लिए बहुत समय चाहिए एक्चुअली, और थोड़ा उतना मतलब प्रिपरेशन भी चाहिए। तो पूरा उसमें भगवान ने बताया है उसी अध्याय में कि कैसे हमारा मन ही हमको धोखा देता है, मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है, अगर हम उसको कंट्रोल कर ले तो वो मित्र है ना। सो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य गए और श्रील प्रभुपाद जी से बोले, श्रील प्रभुपाद जी मैं भी हरिदास ठाकुर के जैसे 192 माला का जप करना चाहता हूँ। सो मैं भी एक कुटिया बनाऊंगा मायापुर में और वहां पर बैठकर चुपचाप जप करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी बोले नहीं, आप जप नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग में आप ऐसा नहीं कर पाओगे। और किसी भी दूसरे व्यक्ति को देखकर हमें उसे इमिटेट नहीं करना है, क्योंकि हमारा इंडिविजुअल नेचर डिफरेंट है, राइट। कभी हम, कोई ऐसा है जो सुबह जल्दी उठता है, कोई है बहुत देर के बाद उठता है, सबका इंडिविजुअल। तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि आप ऐसा मत करो, पर वो बार बार बोल रहे थे नहीं मैं जाऊंगा, जब करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी ने बोला ओके ठीक है आप जाइए, आपके लिए उनके लिए कुटिया भी बनवा दिया और बोला कि आप बैठकर जप करिए खाली, क्योंकि अगर आप 192 माला करेंगे, आप जो लोग जप करते हैं वो जानते हैं, तो आपको 22 घंटे लगेंगे। ठीक है, 24 घंटे होते हैं, 22 घंटे आपको जप में लगेंगे। तो उन्होंने बोला मैं 22 घंटे जप करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है मैं आपको प्रसाद भी भिजवा दिया करूंगा। एक दिन प्रसाद गया, 2 दिन प्रसाद गया, 3 दिन गया, चौथे दिन वो गायब, है ना। सो चैंटिंग भी हमें भक्तों के संग में रह के, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, है ना। चैंटिंग जो जप है, तो असली ध्यान जो है वो अकेले बैठ के हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन हमें तुरंत धोखा देगा। ये कितना भारी सेंटेंस है, आपको पता है। लोग बोलते हैं ना उस आदमी ने मेरे को चीट किया, वो लड़के ने मेरे को ऐसा बोला, बोलते हैं ना, वो आदमी ने मेरा पैसा ले लिया, बहका दिया। पर आपने कभी सुना है आपका ही मन आपको धोखा दे रहा है? सुना है कभी? हमारा ही मन हमें धोखा देता है। तो चैंटिंग करना है, पर वो भी भक्तों के संग में रहना है। ठीक है, अगर ऐसा असंभव हो रहा है कि हम भक्तों के संग में नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें फिर भी अकेले बैठ के जप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें भक्तों का संग करते रहना है। जैसे आप लोग आज आए हैं, राइट, ये एक तरीके से संग है, सत्संग है। वैसे मैं तो साधु हूँ नहीं, फिर भी कुछ तो बोल रहा हूँ, तो आप लोग सुन रहे हैं, राइट। और मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? श्रील प्रभुपाद जी के बुक से, अपने मन से कुछ। तो श्रील प्रभुपाद जी का बुक अगर हम पढ़ते हैं, उनके बुक से अगर हम कुछ सुनते हैं, तो हम डायरेक्ट श्रील प्रभुपाद जी का संग करते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग श्रील प्रभुपाद जी को जानते हैं? और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं। आप लोग नहीं जानते हैं पीछे, यू डोंट नो, ठीक है। सो श्रील प्रभुपाद जी एक हमारे जैसे ही साधारण परिवार में पैदा हुए थे, मतलब अवतार लिए थे, अवतार ऐसा भी नहीं बोलते, लेकिन उनका प्रादुर्भाव हुआ था, ठीक है, 1896 में वेस्ट बंगाल। और वो बचपन से ही, उनके पिताजी थे वो एक मतलब भक्त थे, और अपने बेटे को भी श्रीमती राधा रानी का भक्त बनाना चाहते थे। अब कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बेटे को भक्त बनाना चाहते हैं? माता जी लोग भी यहाँ बैठी हैं, है ना। हाँ, कोई नहीं बनाना चाहता एक्चुअली, लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि श्रील प्रभुपाद जी श्रीमती राधा रानी के भक्त बने, और वही हुआ, आज परिणाम सामने है। सो श्रील प्रभुपाद जी बचपन से ही करताल बजाते थे, कीर्तन करते थे, मृदंग सीखते थे, हारमोनियम सीखते थे।
उस पर कीर्तन करते थे। 5 साल के जब छोटे से थे, जब हम गुड्डे खिलौनों से खेलते हैं, उस समय शिल प्रभुपाद छोटा सा एक रथ बना के उसमें जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को बिठा के रथ यात्रा निकाल रहे थे। 5 साल के थे। तो आप थोड़ा सोचिए, आप सब सोच रहे हैं कि नहीं? 5 साल के थे शिल प्रभुपाद, और उस समय वो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलते हैं। आपको पता है ना, पुरी में रथ यात्रा निकलता है। सो वो रथ यात्रा निकल, और हमेशा वो जाना चाहते थे पुरी। एक्चुअली वो पुरी जाना चाहते थे हमेशा, बचपन से। और मौका कब मिला? 18 साल के जब हुए तो, और गए भी। और बाद में जब वो 22 साल के हो गए, उन्होंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया। लेकिन देखे कि समाज में, खासकर बंगाल में और उड़ीसा में है ना, बहुत सारे अपभ्रंश संप्रदाय फैले हुए हैं। वो लोग बोलते हैं मैं भगवान को जान गया हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो वो लोग ऐसा प्रीच करते थे। तो लेकिन वो युवा थे, जैसे हम लोग भी युवा जब रहते हैं, जब जैसे इस समय जो लोग हैं, मोस्टली हम लोग डिनाई करते हैं देयर इज नो गॉड, है ना, बोलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी भी वैसे बोलते थे देयर इज नो बोनाफाइड साधु। क्योंकि बहुत सारे साधु ऐसे हैं, वो कहने के लिए तो साधु है, पर वो अच्छे से नियमों का पालन नहीं करते, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, अपने ही मन गणन कुछ तो बोलते रहते हैं, और फिर किसी प्रकार से वो भी इंद्रिय भोग में लग जाते हैं। और यही होता है समाज के पतन का कारण। सबसे पहले जब भारत में अंग्रेज आए, तो उनको लगा, सॉरी, अंग्रेजों से पहले कौन आया? मुगल आए। तो मुगल आए तो उन्होंने राज्य जब करना प्रारंभ किया, फिर देखा कि ये लोग कितने अपने मतलब धार्मिक रूप से कितने उच्च हैं ये लोग। तो उन्होंने सोचा कि ये जो धार्मिक जो परंपरा चल रही है, जो संस्कृति है, उसको विनाश कर दिया जाए। तो उनको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, पढ़े लिखे ज्यादा लोग थे नहीं, बस युद्ध करना जानते थे। उन्होंने मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ किया। उनको लगा कि अगर ये मंदिर तोड़ेंगे तो इन लोग का जो कल्चर है, पूरा जो एक तरीके से व्यवस्था बनी हुई है, खत्म हो जाए। पर खत्म नहीं हुई एक्चुअली। लेकिन उसके बाद ही अंग्रेज आ गए। और अंग्रेज कौन थे? बड़े स्मार्ट लोग थे, इंटेलिजेंट पीपल। वो है ना, मारने वारने में ठीक है वो करते थे, दंड देते थे, उन लोग का भी बहुत ये था, लेकिन युद्ध करने में विश्वास नहीं रखते थे। क्योंकि उनको पता था कि युद्ध करेंगे तो हमारी संपत्ति क्या होगा? हाश होगा, और वही तो हम लेने आए हैं। उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से शास्त्रों का अध्ययन किया, हमारे शास्त्रों का, ऐसे लोगों को लगाया, अपने बड़े बड़े अधिकारियों को संस्कृत पढ़ने के लिए लगाया। और फिर उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था जो चल रही है इस ज्ञान की वजह से, और उसमें क्या किया? मिक्सअप कर दिया। ऐसे लोगों को बिठाया जो उल्टा सीधा उस ज्ञान को ही तोड़ मरोड़ के पेश करने लगे। तो फिर क्या हुआ? बहुत सारे अपभ्रंश फैल गए समाज में। लोग जो है, जो सही ज्ञान था उससे दूर हो गए। जैसे कि अभी हमने देखा राम जी का मंदिर बना, ठीक है ना, लोग पूछ रहे थे आगे क्या। एक्चुअली अभी हम किस स्टेज पे हैं? जब उन्होंने मंदिर तोड़ा था तो हमने मंदिर अभी बनाया, पर अभी काम खत्म नहीं हुआ। अभी स्टेब्लिश क्या करना है? जो हमारे शास्त्र हैं उसको स्टेब्लिश करना। आप समझ रहे हैं? हमारे शास्त्रों को स्टेब्लिश करना है। मैं क्या बोल रहा था इसके पहले? हाँ, वो तो अंग्रेज करने लगे शास्त्रों। हाँ, शिल प्रभुपाद जी के बारे में बोल रहा था, सॉरी मैं बोल रहा था। तो शिल प्रभुपाद जी भी डिनाई करते थे। एक्चुअली ऐसी कथा है ना, इंटरकनेक्ट हो जाती है ना। एक कथा हम बोल ही नहीं पाते। जैसे हमको पता है सामने वाली ऑडियंस में कुछ लोगों को कुछ चीजें नहीं पता है, तो वो भी बता दो, वो भी बता दो, 1 घंटे में कितना बताना। तो ठीक है, शिल प्रभुपाद जी ने प्रयास किया पूरा, तो वो डिनाई करते थे कोई साधु नहीं है। लेकिन क्या हुआ, अचानक से एक दिन उनके मित्र बोले कि चलो मैं तुमसे एक साधु से मिलवाता हूँ। जैसे हम लोग भी बहुत लोग आते हैं ना अपने दोस्तों की वजह से, अरे चल चलो चलो चलो। मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में जब मुझे कुछ नहीं पता था, तो मेरा एक दोस्त था, वो बोलता था चलो नाचना है वहां पे। मैं बोला क्या करना, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मैं गया था पुणे में, एक्चुअली मैं गया था कई बार, तो वो बोला नहीं नहीं डांस करना है, क्योंकि उसको भी डांस करना रहता। वैसे ही शिल प्रभुपाद जी को एक भक्त लेके गए, और उन्होंने उनके गुरु महाराज से मिलवाया। और उनके गुरु महाराज ने कहा
कि है ना, आप जाइए विदेशों में। ऐसा पहली बार मिले, देखे पीछे बैठे थे शिल प्रभुपाद, उस समय उनका नाम अभय चरण डे था। बोले कि यू आर, मतलब अंग्रेजी में बोले कि आप एक बहुत पढ़े लिखे सुशिक्षित व्यक्ति हो, आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त है, आप जाइए और विदेशों में जाके चैतन्य महाप्रभु के मिशन का प्रचार प्रसार करिए। ऐसा बोल दिया, ऐसे डायरेक्ट बोल दिया। तो शिल प्रभुपाद शॉक हो गया, अरे ऐसा क्या, मुझे तो पता भी नहीं, जानते भी नहीं, ऐसा कैसे बोल दिया। और वो सोचने लगे, घर पे आए और उनके मन में चलने लगा। और यही होता है, जब आपका इंटरेक्शन एक सही साधु से होता है तो आपके जीवन में बदलाव आता है। और वो कौन सा पॉइंट है? एसोसिएशन। एसोसिएशन जब हम साधु का करते हैं तो हमारे जो प्रैक्टिकल जीवन है उसमें बदलाव आता है। तो हम ये देख सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं भगवान कौन है, आपने देखा है? तो हम वो महसूस करते हैं अपने जीवन में जब हम किसी सच्चे साधु से मिलते हैं। सो हमारे जीवन में कुछ तो ऐसा बदलाव हो जाता है जिससे हमको लगने लगता है, हाँ यार, मैं ऐसे जी रहा था, अब मुझे ऐसे नहीं जीना है। और डेडिकेशन अपने आप आ जाता है, वो सिंसियरिटी आ जाती है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे हम न्यू ईयर बहुत सारा ये लेते हैं ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, कि हम ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन जब हम साधु से मिलते हैं तो अपने आप को जनरेट हो जाता है कि आज से हम माला करेंगे, आज से हम भगवान का नाम का जप करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे। और उसी हिसाब से जो अगला स्टेप क्या है, डाइट, भोजन, है ना। और भोजन में क्या करते हैं हम लोग बाहर, हाँ, भोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप जाके बाहर जो जो खाओगे वैसे ही मन सोचेगा। और भगवान भगवत गीता में बताते हैं 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। जो सतोगुण में है वो ऊपर की लोकों में जाएंगे, या ऊपर जाएंगे, जिस भी अवस्था में है उससे ऊपर जाएंगे। जो तमस में है वो यहीं पे रहेंगे, या फिर इसी लोक में, मतलब इसी पृथ्वी पे या तो मनुष्य का शरीर मिलेगा या फिर वो जानवर बन जाएंगे। जैसे जानवर है ना, तमस रजो में रहते हैं। रजो जैसे शेर है, वो हमेशा शिकार करता है, मांस खाता है। बहुत सारे मांसाहारी लोग हैं, है ना। और जो तमस में रहेगा, जो कि आज ही मांस खा रहा है, इसी शरीर में मांस खा रहा है ना, मांस खा रहा है, व्यसन कर रहा है, गलत गलत जो कार्य है, एक्टिविटीज है वो कर रहा है, चोरी कर रहा है, लोगों को झूठ बोल रहा है। एक्चुअली वकील क्या करते हैं, सच को झूठ बोलते हैं, झूठ को सच बोलते हैं। सो एक तरीके से ये तमोगुण में आते हैं। और ऐसे लोग या तो नीचे के लोगों में जाएंगे, नीचे के लोगों को मतलब जानवर, ठीक है, जानवर नहीं, जानवर में भी ये 4 पैर वाले जानवर नहीं, कीड़ा, विष्टा का कीड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया बहुत सारे रहते हैं, या फिर नरक लोग हो जाए। सो इस हिसाब से हम गुण गुण मतलब भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा इंटरकनेक्टेड है हमारे जीवन से। और हम देखते हैं कि महाभारत का युद्ध हो रहा था, तभी ये बोला गया था, प्रैक्टिकल एकदम। सबसे सेनाएं खड़ी हैं, बीच में रथ को लेकर आते हैं, अर्जुन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अर्जुन, रोम हर्षस्य जायते, मतलब ऐसा बोलते हैं कि मेरा जो रोंगटे हैं खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडी सरक रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, फिर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं, मैं हृदय से दुर्बल हो गया हूं, है ना। वैसे ही हमारा भी जीवन है, सेम उसी लेवल पर हम लोग। लेकिन हमारा लेवल और खराब क्या है कि अर्जुन क्या है, भगवान से पूछते हैं, हम किसी से कुछ नहीं पूछते। पूछते भी है तो किससे, चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से पूछते, वो पूरा अच्छे से देता है। पर हम उतना पढ़ते नहीं है, फिर बोलते भाई छोड़ो ये सब। तो फिर हमारा वही हाल होता है। लेकिन हमें इंक्वायरी करनी चाहिए। आप लोग मंदिर में आते हैं तो आप लोग को प्रश्न पूछना चाहिए, और देखना हम 10 मिनट पहले ही विश्राम देंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। आप लोग के मन में क्या जिज्ञासा है, हम उस पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। सो अर्जुन सवाल पूछते हैं भगवान से कि
मतलब मुझे क्या करना चाहिए आप बताओ। तो भगवान बताने लगते हैं अर्जुन तुम ये शरीर हो नहीं, तुम आत्मा हो। अर्जुन बोल रहे अरे मैं पूछ रहा हूँ युद्ध करूं कि नहीं करूं, आप बोल रहे हो तुम शरीर नहीं हो। सो भगवान फिर बताते नहीं तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा का न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न आग आग बहा सकती है, न अग्नि जला सकती है, न पानी उसको डुबा सकता है। सो इसलिए तुम आत्मा के स्तर पर काम करो, काम करो। तो ये कर्म योग आ जाता है 4th चैप्टर। सो भगवान बोलते हैं कि तुम कर्म करो, और फिर बोलते हैं भगवान कर्म करो और कैसे, अनासक्त होकर कर्म करो। ठीक है, हम कर्म करते हैं, कैसे कर्म करते हैं, पैकेज चाहिए, पैकेज 50 लाख है ना। सोचते हैं कि कैसे कैसे तो हमारा ये हो जाए, क्या बोलते हैं, कैंपस सिलेक्शन। कितने लोग बीटेक या ऐसे कर रहे हैं तो उनको पता है। या फिर हम सोचते हैं कि हमने इस आदमी को ट्रेडिंग में 30,000 दिया है तो ये 50,000 करके हमको वापस करे, है ना। ऐसे हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, हम कर्म ऐसे करते हैं कि उसका रिजल्ट आए। जैसे आप लोग भी कुछ करते रहेंगे, राइट, तो सबका अपना अपना है। सो भगवान बोलते अनासक्त हो गए, उसमें आसक्ति मत रखो कर्म। और फिर वो श्लोक बोलते हैं, कौन सा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा तेषां असक्त कर्मणि। फिर आता है, जैसे जैसे बोलते हैं भगवान अनासक्त होके, अब बोलते हैं भगवान जो अपनी इंद्रिय है, मन और बुद्धि को कंट्रोल करके कर्म करो। और फिर वहीं पर 6ठा चैप्टर आता है ध्यान योग। ठीक है, और उसी ध्यान योग में भगवान बताते हैं कि आप है जो मन है वो किसको, कृष्ण, मतलब मुझे दे दो, मतलब मेरे को अर्पित कर दो। जो मन की सारी जो एक्टिविटी है बेसिकली उसको मुझे दे दो। सो फिर अर्जुन पूछते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवर्धितम तस्याहम निग्रहम मने वायोरीषु दुष्करम। ये जो मन है बहुत चंचल है, बहुत बलवान है, बहुत टर्बुलेंट है, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। फिर भगवान बताते हैं, कौन सा बताते हैं श्लोक, कौन बताएगा, ठीक है मैं भी थोड़ा बोल रहा हूँ। बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट यू कैन कंट्रोल योर माइंड। ठीक है, ठीक है, ये 4th मतलब 6th चैप्टर में ही है। तो उस श्लोक में भगवान बताते हैं कि बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट यू कैन कंट्रोल योर माइंड। अब हम आते हैं प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस क्या करना है हमको, वही जो मैं बता रहा था, ABCD, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, chanting and diet. If you're practicing this, then you can control your mind. And once you control your mind, so आप क्या कर सकते हो, सॉरी मैं अंग्रेजी में आ जा रहा हूँ, प्लीज माफ करिए, आप बहुत देर से अंग्रेजी बोल रहे थे। सो क्या होता है, अगर आप अपने मन को कंट्रोल करो, नियंत्रित कर लो, तो फिर आप क्या कर सकते हो। भगवान बताते हैं कि अगर आपने मन को नियंत्रित कर लिया तो मन ही आपका सच्चा मित्र है। और अगर आप नियंत्रित करने में फेल हो गए, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मिठी बाई कॉलेज है नजदीक में, पिछले के पिछले साल एक घटना हुई। लड़के क्या हुए, लड़कों ने एक एडवेंचर करना चालू किया। वो एडवेंचर क्या था, रात को 2 बजे जाने का, अंधेरी स्टेशन पर बड़ा पाव खाने का। लेकिन वो वार्डनर रहते ना, वार्डन वाले, सो वो अलाउ नहीं करते। सो ये लोग क्या करते थे, छत पर जाते थे और छत से दूसरे छत पर कूदते थे, और कूद के फिर उस मतलब बिल्डिंग से नीचे उतरते थे और फिर जाते थे। अब बताओ 2 बजे मतलब बड़ा पाव रात को खाना, अगर आपको 2 बजे भूखी लग रही है तो आप खरीद के रख लो या कुछ और रख लो और 2 बजे खा लो, भूख लग रहा है तो। पर ये एडवेंचर हो गया उनके लिए, क्योंकि मन उनको बोल रहा था कुछ करो। अब वार्डन एक्चुअली क्या रहता है, हॉस्टल में लोग बोलते नहीं आप टाइम से आओ, टाइम से रहो। अब उसके खिलाफ जाना है, क्योंकि मन बोल रहा नहीं तुम क्यों, तुम तो आजाद हो, तुम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक। ठीक है, अभी जा रहे हैं तो फिर एक्चुअली वो लड़का यहाँ पे आया था जिसका मैं बता रहा हूँ। तो एक नया लड़का आया, फिर उस मंडली में एक नया लड़का शामिल हुआ, और वो जो दूसरे बिल्डिंग से ऐसा कूदते थे, वो बिल्डिंग में थोड़ा गैप था 5 फीट, ठीक है, और 6 फ्लोर की बिल्डिंग थी। सो 3-4 लोग धक धक कूद गए रात को। पर ये जो नया वाला था
वो भी कूदा और उसका पैर है उस छत पे पड़ा, लेकिन ऐसे बैंड हो गया, ऐसे बैंड हो गया। ठीक है, अब वो उससे गिरा, फिर इस बिल्डिंग में आके लड़ा, फिर इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग, 6 माले में ऐसे किया उसने, मतलब सीधे नहीं गिरा वो, 3-4 बार ऐसे ऐसे गिरा, लेकिन मरा भी नहीं। बच गया, उसका पैर और हाथ ही टूटा। भगवान की कृपा देखो कि पैर और हाथ ही टूटा, मर जाना चाहिए एक्चुअली, मना नहीं रहा हूँ, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है, मतलब 6 माले की बिल्डिंग से आप ऐसे गिर रहे हो तो मर गए, लेकिन हाथ पैर टूटा और हंस रहा था वो। तो ऐसे हुआ। लेकिन ये क्यों करते हैं ऐसा लोग? हम भी अपने जीवन में करते हैं, हम भी अपने जीवन में करते हैं। नहीं, जैसे और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, बहुत सारे लोग सेल्फी लेने जाते हैं, सेल्फी पॉइंट पे, मन ही तो बताता है कि हम ऐसे सेल्फी लें, और आप सबको पता है, न्यूज में आता रहता है ना, न्यूज देखते हैं ना आप? नहीं देखना चाहिए इसलिए। न्यूज में आता है कि ऐसे सेल्फी ले रहे थे तो फिर क्या हुआ, पैर फिसल गया, इतने लोग चले गए। तो हमारा मन ही शत्रु है, और इसी मन को अगर आप, जैसे आप सभी कितने पुण्यवान लोग हैं, और मन को अपने कितना नियंत्रित किया हुआ है कि आप बाहरी दुनिया का जो माया प्रपंच है उसको छोड़ के आपने सोचा कि चलो 1 घंटा सुनना है, मतलब आप लोग का माइंड बहुत हद तक नियंत्रित है। क्यों हो रहा है ये सब? कि वही शिल प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज का आज्ञा का पालन किया, और उन्होंने क्या कहा था, विदेश में जाओ, प्रचार करो। 1922 में उनको यह आदेश मिला था। वो लगातार प्रयास करते रहे कि मैं किसी दिन अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करूं। धन का अभाव और पारिवारिक जिम्मेदारियां, इसकी वजह से वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। 45 साल बाद उनको मौका मिला 1965 में, और वो विदेश गए। विदेश कहाँ गए? अमेरिका गए। वहां पे युद्ध हो रहा था, अमेरिका वियतनाम का, और वहां पर आप सोच लो कि एक देश है जो युद्ध कर रहा है, तो कैसा होगा माहौल। 1965 में अमेरिका वियतनाम का वार हुआ था, आप लोग जाके देखोगे तो पता चलेगा। अमेरिका वो वियतनाम को कुछ तो खत्म कर देना चाहता था, और बहुत दिन से युद्ध चल रहा था, वो सालों लग गए। तो वहां के लोग परेशान हो गए, अमेरिका के लोग, कि क्यों कर रहे हो ये सब, हमको चैन से रहने दो भैया, रोटी खाना है, सोना है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम करने दो, ये युद्ध वगैरह क्या। प्रदर्शन करने लगे, उनको कुछ समझ में नहीं आता था क्या करना है। और अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा हट के, तो हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। भारत में देखो स्थिति कितनी शांत है, हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं, भगवत भजन कर रहे हैं। कई जगह ऐसा असंभव है, कई जगह, कई सारे देश अभी भी युद्ध में लगे हुए हैं, आप लोगों को पता है। प्रभुपाद उस समय अमेरिका गए, और जब अमेरिका गए तो उनको जानने वाला कोई नहीं था। हम अंधेरी मुंबई से दिल्ली चले जाएं, कोई जानने वाला न रहे तो दही हो जाएगा, दही है ना। तो अमेरिका गए, कोई जानने वाला नहीं था, और वहां बैठकर उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया, क्योंकि बचपन से उन्होंने वही सीखा था, वही बोला था, वही जिंदगी जिया था। 4 बजे अगर वो बिजनेस व्यवसाय करते थे और किसी ट्रिप पे जाते थे बड़ा दूर, तो भी 4 बजे उठ के वो कीर्तन करते थे, सुबह 4 बजे। जाड़े के मौसम में 4 बजे उठना, तो भी वो उठते थे। अगर आप लोग कोई YouTube में अभय चरण देखोगे, उनके ऊपर एक मूवी बनी है, उनके ही शिष्य भक्ति चारू महाराज ने बनाई है, तो आप लोग को पता पड़ेगा उनके बारे में। तो ठीक है, हमारा विषय ये नहीं है, लेकिन ये जो ध्यान योग है, वो शिल प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे कि हमारा मन ऐसे नियंत्रित तो हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर इस मन को भक्ति में लगाना है तो लगातार श्रवण करते रहना है, श्रवण। अब जैसे हम लोग बैठ के सुन रहे हैं, कई बार हमको समझ में आता है, कई बार नहीं आता है, लेकिन लगातार अगर हम सुनते रहें तो एक दिन ये मन हमारा अपने आप स्मरण में लग जाएगा। हम जो सुनेंगे वही सोचेंगे, है ना। हम अभी जो सुन रहे हैं वो हमारे माइंड में चलेगा। एक बार है ना, वृंदावन में अद्भुत हरि प्रभु जी को आप लोग जानते हैं ना, हम लोग गए थे 2019 में। तो प्रभु जी बता रहे थे कि जो हम वृंदावन आते हैं, क्यों आते हैं, ऐसे धाम जाते हैं, तो उसका विशेष लाभ क्या है। उसका विशेष लाभ ये है कि हमारे माइंड में सर्टेन इंप्रेशंस क्रिएट होती है। जैसे हम बाहर देखे रहते हैं कुछ, जैसे मान लो हम जा रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट देख लिया, है ना, कितना डर लग जाता है। जैसे मुझे डर लग जाता है बहुत एक्सीडेंट। एक बार मैंने कांदीवली में एक व्यक्ति, हट्टा कट्टा व्यक्ति था,
गिर गया कांदिवली स्टेशन पे, ट्रेन के नीचे। और मैं है ना इस साइड में बाजू में ट्रेन पे विंडो पे बैठा हुआ था, और ट्रेन जैसे गई तो मैंने ऐसे देखा, मतलब जैसे ही जिस विंडो पे बैठा था उसके बाजू में ही वो गिरा था, पानी पाया पानी, लाइक दोनों हाथ कट गए। ये इम्प्रेशन क्रिएट हो गया, निकलता नहीं है जल्दी। वैसे ही धाम में हम जाते हैं तो इम्प्रेशन क्रिएट होते हैं हमारे मन में, और वही इम्प्रेशन हमारे जीवन में रहते हैं। जैसे अभी मैंने बोला आप लोग का इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है ना, देखो मेरे में भी ऐसा स्ट्रॉन्ग हार्ट वो क्रिएट हो गया कि मैं वो बोलता नहीं, वो याद मतलब याद रहता। और फिर मेरा तबीयत खराब हो गया 1 महीना, बढ़ती था मृत्यु से कितना भय है, मुझे भी, सबको भय है। एक बहुत बड़े डिवोटी है इस्कॉन में, उनको कोविड हो गया था, बहुत बहुत, जब कोविड टॉप पे था। बाद में वो जब आए ठीक होके तो बोल रहे थे कि आई वॉज नॉट एबल टू रिमेम्बर कृष्ण फॉर अ मोमेंट, एक बार भी मैं कृष्ण को याद करने में सक्षम नहीं था। अब भगवान गीता में बोलते हैं आगे, अंतकाले च मामेव शम्भृता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ता यत्र संशय। उसी तरह श्रील प्रभुपाद जी का जो इंप्रेशन था, जो प्रचार का शक्ति था, वो भी कीर्तन करने लगे। पूरा अमेरिका त्रस्त था, पूरे अमेरिका में अलग अलग तरीके की चीजें चल रही थी, लेकिन वो टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क के एक वृक्ष के नीचे बैठ के कीर्तन करने लगे। लोग आ गए, जुड़ने लगे उनसे, और इस तरह से पूरा इस्कॉन मूवमेंट चालू हुआ। 1 साल बाद उन्होंने उन्हीं लोगों की सहायता से इस्कॉन का स्थापना किया। और श्रील प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता जो हम पढ़ते हैं, वो उसका ट्रांसलेशन कर रहे थे बहुत पहले से ही अंग्रेजी में, और बाद में 1972 में मैकमिलन कंपनी है, आप लोगों ने नाम सुना रहेगा, उसने पहली बार भगवत गीता को मतलब प्रिंट किया, और फिर वही भगवत गीता हम पढ़ते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया, अब देखो भगवत गीता संस्कृत में है हम जानते हैं, उसका ट्रांसलेशन उन्होंने इंग्लिश में किया, और उस पर उन्होंने परपट दिया। किसके पास, कितने लोगों के पास भगवत गीता है? तो आप लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, देखते हैं उस पर परपट लिखा हुआ है, सो परपट दिया, और वही परपट से हम अपने जीवन का जो असली उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और ऐसे बहुत सारे हजारों हजारों लोग वो परपट पढ़ के अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो आप लोग भी भगवत गीता पढ़िए। सो जैसे कि मैं बता रहा था, ध्यान योग, अभी ध्यान योग का विधि जो है वो सतयुग में लागू होता है। हजारों हजारों, जैसे हिरण्यकश्यप था, एक पैर पर ऐसे हाथ ऊपर उठा के 36,000 साल तक तपस्या किया। हम 36 सेकंड ऐसे नहीं खड़े रह पाएंगे, है ना, तो वो संभव नहीं है। और ये जो विषय है इसीलिए लिया था मैंने कि थोड़ा इस पर प्रैक्टिकल चर्चा कर सके। सो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कलयुग के जीवों के लिए क्या संभव है वो अनुवाद में आपने बताया है। तो अनुवाद में यही बताया है, ABCD, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग, डाइट। सो इसके द्वारा हम अपने जीवन में जो ध्यान योग का असली मकसद है वो प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान योग का असली मकसद क्या है, उद्देश्य जो है वो क्या है, भगवत प्राप्ति है। उसके द्वारा योगी क्या करता है, अपने जो मतलब इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करके अपने आत्मा से परमात्मा को कनेक्ट कर लेता है। लेकिन वो उस तरीके से, उस मेथड से जैसे कि सतयुग में होता है, वो संभव नहीं है। तो हम कलयुग में कैसे कर सकते हैं, जब कर सकते हैं, मंदिर आके कर सकते हैं, जैसे आप लोग पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे जॉब करते हैं, तो आप लोग जब करिए, समय निकालिए जब करने के लिए। जैसे आप निकालते हैं जॉब जाने के लिए, समय निकालते हैं 10 घंटे 12 घंटे, वैसे ही आप आधा घंटे, अगर आप पहली बार जब कर रहे हो तो 1 माला 2 माला, आप 1 साल से हो तो 16 माला 8 माला 10 माला ऐसे करो, आप करिए, तभी आप अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाओगे। बेसिकली कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, 3 योग है, उसके बाद आता है भक्ति योग। सो ये जो तीनों योग है, मतलब योग का जो असली उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति ही है। लेकिन जो कलयुग है, जैसे मैंने बताया, इसमें हम ध्यान योग नहीं कर सकते, कर्म योग भी नहीं कर सकते। अपने कर्म का जो 100% है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, दे सकते हैं 100% सैलरी टेम्पल को। कौन है, हम सोचते हैं ना कि एक्चुअली मैं भी वही हूँ। तो
सोचते हैं कि चलो ये सैलरी आया तो 200-400 डाल दिया गुल्लक में, थोड़ा डोनेशन दे दिया, हो गया। ऐसे नहीं होता है। वो पूरी जो जो हमारा जो फल है वो भगवान को अर्पित करना रहता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा प्रोसेस दिया है कि आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप अपने घर में भगवान के विग्रह को लाइए, भगवान के विग्रह को सुबह आरती करिए, उठिए, भगवान की पूजा करिए, जप करिए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, प्रसाद बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और फिर खुद प्रसाद पाइए। और वो जो घर है, आप बोलिए ये मेरा घर नहीं है। किसका घर है? जो विग्रह है, जगन्नाथ जी का विग्रह है तो जगन्नाथ जी का घर है, कृष्ण का विग्रह है तो कृष्ण का विग्रह है। सो प्रभुपाद जी के एक शिष्य हुए गौर गोविंद महाराज, वो नैरोबी में गए थे। सो नैरोबी में श्री प्रभुपाद जी जाके आए थे वहां पे, तो वो घर घर में जाके प्रभुपाद रहे थे और प्रभुपाद ने घर को ही मंदिर बनवा दिया था पूरा। घर में एक कमरा मतलब विग्रह का रहता था, लोग आते थे वहां पे जप करते थे। सो गौर गोविंद महाराज ने बोला, हुज हाउस इज दिस? ये किसका घर है? वो तो भक्त का घर था। हाँ? सो भक्त तो बोल नहीं सकता ये मेरा घर है, क्योंकि जान रहा है महाराज क्या पूछ रहे हैं। सो भक्त ने बड़ा बुद्धि लगाया, बोला महाराज गौर निताई का घर है। सो महाराज बोले, व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो ये चेतना है कि हमारा कुछ भी नहीं है। किसका है? कृष्ण का। ये शरीर भी जो है हमें मिला है कुछ समय तक, और हम आत्मा है, और ये जो ज्ञान है वो श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। और उसी का एक अध्याय ध्यान हो गया जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, और अब हमारा समय पूरा होता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सो अभी आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि सब लोग कुछ ना कुछ पूछें। ठीक है, 10 मिनट का समय है हमारे पास। किसके बारे में? ओके, रजोगुण का अभी सेल्फ एक्सीलेंस में एक पीपीटी के द्वारा बताया गया था। रजोगुण में बेसिकली क्या होता है, हम सोचते रहते हैं कि मैं ये प्राप्त कर लूंगा, भविष्य में रहते हैं, भविष्य में रहते हैं। रजोगुण मतलब भविष्य में रहते हैं। भविष्य में मैं ये कर लूंगा, भविष्य में मैं बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बनूंगा, कैसे बनूंगा, और उसके लिए हम कार्य भी करते हैं। ठीक है। और रजोगुण के लोग जैसे हैं मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं, जैसे कि राजा, या फिर जैसे राजा सत्वगुण में भी हो सकता है, पर जैसे अभी पॉलिटिशियन है, वो हमेशा चाहता है मैं रूल करता रहूं। सो ये रजोगुण है एक्चुअली। और इसके द्वारा मैं भोग करता रहूं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करता रहूं, है ना। मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं कहीं घूमने जाऊंगा, मोस्टली ये रजोगुण जैसे है। लेकिन वही डिजायर अगर हम करते हैं कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, तो ये क्या है? तत्वगुण है। तो हमें ऐसा मतलब अपने डिजायर में भी भगवान को ही लाना चाहिए कि मैं ये करूंगा, मैं भगवान के नाम का 2 माला अधिक जाप करूंगा। या फिर जो नहीं जानते हैं वो सोचते हैं, तो उनको ऐसा करना चाहिए कि मैं जाके देखूंगा ये जप करना क्या होता है, मैं पूछूंगा लोगों से कि जप कैसे करते हैं, और जप करने की क्या विधियां हैं, क्या बोलते हैं। और फिर जैसे बहुत सारे लोग जो भगवान को भोग लगा के नहीं खाते हैं, वो इंक्वायरी करना चाहिए उनको कि भगवान को भोग लगा के कैसे हम प्रसाद पा सकते हैं। और फिर जैसे कोई अपने घर में विग्रह रखना चाहते हैं, वो उनको इंक्वायरी करना चाहिए कि कैसे रखते हैं, कैसे हम उनका मतलब बहुत सारा है ड्रेसिंग वगैरह, वो कैसे करते हैं। सो ये इंक्वायरी ही भक्ति है एक्चुअली, यही ध्यान योग है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, जब भी हम लोग सत्वगुण बोलते हैं तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि सत्वगुण एकदम मतलब जैसे रजोगुण बोलते हैं तो उसमें हम लोग पैशनेट रहते हैं, जो भी चीज़ हम लोग को करना रहता है उसके लिए बहुत पैशनेटली डिटरमाइंड होके करते हैं। तो सत्वगुण में क्या मतलब अगर वो पैशनेट या वो नेचर नहीं रहेगा तो हम कैसे कुछ करेंगे, क्योंकि हमें माइंड से लड़ना है, मतलब माइंड से लड़ना है, मतलब कितना हमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, तो हमें इतना डिटरमाइंड होके वापस से अपने माइंड को जो हम लोग चाहते हैं उसमें। मतलब आप बोल रहे हो बेसिकली, आपका प्रश्न है कि माइंड ही हमारा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में रहता है, राइट? तो हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, मतलब
रजोगुण अच्छा नहीं होता क्योंकि इसमें हम लोग पैशनेट है बहुत है, पर हम लोग अगर सत्वगुण में रह रहे तो हम हमारे भी पैशनेट नेचर और डिटर्मिनेशन है, तो फिर हम कैसे जो इतना डिफिकल्ट लगता है माइंड के साथ चैलेंज करना, वो कैसे कर पाएंगे? मतलब पैशनेट नहीं रहेंगे तो कैसे कर पाएंगे? तो रजोगुण हमारा व्यवहार है, हम वैसे ही रहेंगे, वैसे ही हम रहेंगे। वो बोल रही हमको है, उससे तो उसमें लिखा भगवत गीता में लिखा है ना, हम रजोगुण में रहेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, भक्ति नहीं कर देखो पाएंगे। ये हमारा लेवल है कि हम अभी रजोगुण में हैं, अभी हम सत्वगुण में हैं। अच्छा, भक्ति आप रजोगुण में करना चाहते हो? मतलब हम नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, नहीं कर सकते। देखो हमारा जो ये लेवल है वो है सत्वगुण में है, अभी हम रजोगुण में है, तमोगुण में है, ये अभी हम हैं। लेकिन भक्ति करके आपको इससे ऊपर उठना होगा, तभी हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो जी हम लोग जब ये रजोगुण में रहते हैं तो हम लोग जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए बहुत पैशनेट रहते हैं कि हम लोग को ये करना ही है और हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो हम लोग सत्वगुण में वो नेचर कैसे लेके आए? अच्छा, ओके, अभी मुझे पता चला सत्वगुण में वो कैसे नेचर लेके आए। जब आप सत्वगुण में वो एक्टिविटी, सत्वगुणी एक्टिविटी चालू करेंगे, जैसे भगवान की भक्ति चालू करेंगे 6 p.m. आप बोल रहे कि सत्वगुण में आप रजोगुण वाला रिजल्ट चाहिए आपको, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। एक्चुअली जैसे ही आप सत्वगुण में जाओगे तो सत्वगुण एक्टिविटी ही ऐसा है कि वो आपको प्राप्त होगा। जैसे कि आप सोचो कि जब करना है, मुझे 16 माला जब करना है, धीरे धीरे सुबह 5 बजे से 7 बजे तक हमको जब कर लेना है, तो वो रजोगुण है ही नहीं एक्चुअली। जब आप सोच रहे हो कि मुझे ये प्राप्त कर लेना है, ये रजोगुण है इटसेल्फ, तो आप रजोगुण में ही। लेकिन जब आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे भगवान की भक्ति करनी है, आगे बढ़ना है, तो धीरे धीरे उसका जो रिजल्ट है अपने आप को थोड़ा प्राप्त होगा। आपको थोड़ा पता चल रहा है कुछ भी? ठीक है, मैं बात करूंगा इससे। एक्चुअली सत्वगुण रजोगुण जो है, ये तीनों ऐसे गुण है जिससे हमें ऊपर उठना होता है एक्चुअली भगवान को जानने के लिए। लेकिन हम एक से उठ नहीं सकते, वो हमारा ऑलरेडी नेचर है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। जैसे हम कभी हैं, जैसे प्रभु जी बताते हैं कि आप तमोगुण में हो, मान लो, ठीक है। तमोगुण मतलब आप ज्यादा सो रहे हो, ज्यादा खा रहे हो। रजोगुण आप ज्यादा ही भाग ही रहे हो, पागल बन के कुछ तो दौड़ रहे हो, इधर ये वो, ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। सत्वगुण में हो, सत्वगुण और तमोगुण में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है। चुपचाप बैठे हो इसका मतलब ये नहीं कि सत्वगुण में हो, है ना। रजोगुण भी हो सकते हो। तो हमको वन बाय वन, हमको वन स्टेप अहेड जाना होता है, आगे जाना होता है, जिससे कि हम, जैसे भगवत गीता में भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठो, तो तुम मुझे जान सकते हो। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने हर व्यक्ति के लिए, ठीक है, अब जैसे हमको इतना परेशान नहीं होना है, अरे मैं इस समय कौन से गुण में हूँ, बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं, नहीं, दैट इज नॉट आवर बिजनेस एक्चुअली। हमने जब किया, हमने रीडिंग किया, हमने लेक्चर सुना, हमने प्रसाद पाया, हमने साधु संग किया, दैट इज आवर फोकस। और अपने आप हम कल्टीवेट हो जाएगा कि आज हम, मतलब वो हमको देखना नहीं है। अल्टीमेटली जैसे जैसे हम एक्टिविटी, सत्वगुणी एक्टिविटी बढ़ाते जाएंगे, हम सत्वगुण में होते जाएंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है अब सही है ना। बट वो गलत मतलब जो हम लोग बहुत सारे लोग देखते हैं जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, हम लोग भी तो इतने सारे मेहनत करते हैं और वो एक्चुअली में अचीव करते, कितना सारा हार्ड वर्क करते हैं और डिटरमाइंड भी रहते हैं, तो वो चीज़ सत्वगुण में सही ठीक है। ना? देखो आज का जो टॉपिक है वो ध्यान योग है। आप जो बोल रहे हो वो कर्म योग है, ठीक है। एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या है, जो मटेरियलिस्टिक है वो कुछ एक्टिविटी कर रहा है, वो कर्म बंधन के कारण, इसे उसको इसी भौतिक संसार में आना पड़ेगा। और ये जो एक्टिविटी हम भक्त लोग करते हैं, जैसे कि भगवान, इससे हम जो कर हमारा करना है, हमें क्या होता है, भगवान हमारे बन जाते हैं, हमें वही कर्म देते हैं जिससे हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और जो भौतिकतावादी है, वही कर्म का बंधन
बनता जाता है और फिर से अगेन अगेन एंड अगेन जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसता जाता है। और जब हम भक्ति करते हैं तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकल सकते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पेशली क्या है, कोई जन्म लेता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर बूढ़ा होता है, बीमार होता है और एक दिन मर जाता है। ये 84 लाख योनियों का चक्र है और इसमें भ्रमण करता रहता है। और भक्त है, इसको वो क्या होता है, निकल जाता है। सो आप जो देख रहे हो कि भौतिकतावादी, अच्छा आप ऐसा सोच रहे हो कि भौतिकतावादी ज्यादा अचीव कर लेता है, भक्त ऐसा अचीव नहीं कर पाता। तो भगवान की भक्ति जो करता है भगवान उसको देते ही नहीं कुछ जल्दी। जैसे सपोज कोई एक बालक है छोटा सा, उसके पास पैसे हैं और उसको जुकाम हुआ है, ऐसा ये एग्जाम्पल शिल प्रभुपाद देते हैं। तो वो आइसक्रीम वाले के पास जाता है, आइसक्रीम वाला क्या करेगा, उसका बिजनेस क्या है, बेचना है, पैसा लेगा आइसक्रीम दे देगा, है ना। लेकिन अपने पिताजी के पास जाएगा तो पिताजी बोलेंगे नहीं, पहले दवाई कराएंगे, उसका इलाज कराएंगे, ठीक होगा, फिर आइसक्रीम खिलाएंगे, है ना। वैसे ही भगवान है, जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमारे लिए क्या बेस्ट है वो देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये समझना चाहिए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे भौतिकतावादी व्यक्ति है वो तो बहुत आगे बढ़ रहा है। आप ऐसा कुछ था क्या प्रश्न, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसलिए प्रश्न नहीं, मतलब थोड़ा मे बी बहुत डीप होगा वो नेचर रहता है, जब कोई मटेरियलिस्टिक रहता है तो ऐसा तो नहीं कि वो लेजी रहता है और वो, हाँ तो रजोगुण में रहते हैं, मटेरियलिस्टिक पर्सन सत्वगुण में भी रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब भगवान के जैसे चुपचाप रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, पर अगेन वो इग्नोरेंस ही है, उनको पता नहीं है कि उनकी मृत्यु होने वाली है। देखो भौतिकतावादी व्यक्ति है, ज्यादा भौतिकतावादी व्यक्ति है ना, वो भी खुश रहते हैं, वो भी बहुत खुश रहते हैं, बहुत अपने जीवन में उनको बहुत आनंद रहता है। पर काल आता है, एक दिन मार देता है। जैसे एक बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है उसी मुख से और ले जाके इधर उधर रखती है, प्यार करती है, बड़ा करती है, और उसी मुख से चूहे को दबोच देती है। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वही कर्म कर रहा है, वही एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन काल आएगा उसको क्या करेगा। लेकिन भक्त के जीवन में कौन आएगा, विष्णु दूत आएंगे। समझ में आएगा, थोड़ा अंतर दिख रहा है आपको, है ना। बाहरी देखो, यही तो बोला, व्यक्तिगत है, पर्सनल है, हृदय का परिवर्तन है हमारा, कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब जो मूवमेंट है वो, है ना। हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। अभी जैसे हो सकता है कि बाहर से तिलक लगाया हो, धोती कुर्ता पहना हो और कली का चेला हो, ऐसा भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि बाहर से दिख रहा हो कि भक्त है, मतलब सब कुछ है, पर उसके हृदय में इंद्रिय तृप्ति की भावना होगी, इच्छा होगी, है ना। सो हमारे हृदय में क्या चल रहा है उसका परिवर्तन, हमारे हृदय का परिवर्तन, जो हमारा हृदय इंद्रिय भोगों की ओर लगा हुआ है वो भगवान की भक्ति की ओर कैसे लगेगा। वही श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाके सीखा और वही हम लोग सीखते हैं कि हम अपना जो जॉब करने जाते हैं, जैसे आप लोग जॉब करने जाते हो, पढ़ने जाते हो, सो बहुत सारे लोग जो जॉब करके जाते हैं, जो ऐसे ही जाते हैं, तो बहुत फर्क है उसमें, है ना। जैसे कि श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति है, उसने पीएचडी किया, ठीक है, बहुत सारी पीएचडी की, मान लो एक नहीं 2-3 कर लिया, डॉक्टर बना या फिर बहुत धन कमाया, बहुत बड़ा पोजीशन प्राप्त कर लिया, बहुत बड़ा कहीं उसको मतलब समझ लो कि पूरे वर्ल्ड, जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट ही बन गया, लेकिन जैसे ही मरेगा खल्लास। लेकिन भक्त की जो भक्ति है, अगले जन्म में फिर से अगर उसको शरीर प्राप्त होता है तो फिर से वहीं से प्रारंभ हो जाता है, यही अंतर है, ठीक है। किसी का और कोई प्रश्न है? ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हम रिसोर्सेज नेचुरल एक्सप्लॉइट करते हैं, गलत करते हैं, तो जो भगवान में बिलीव करते हैं वो कहते हैं ये छोड़ो और मिशन पे भगवान पे कॉन्सेंट्रेट करो, चैंटिंग करो। तो क्या ये बिना बड़े नौकरियों की वगैरह मिशन चैंटिंग से कोई नेशन की इकोनॉमी सर्वाइव कर सकती है? हम कभी ये नहीं कहते कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी आपने बोला, ये नौकरी छोड़ो, बिजनेस छोड़ो, हम कभी ऐसा नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि आप जहाँ पर भी हो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और अपना जो भी है
ड्यूटी परफॉर्म करें। ठीक है, हम ठीक कभी है, जो और फिर आपका मन, आपका हृदय, आपके अंदर जो परमात्मा बैठे हुए हैं वो बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आप खुद सोचिए कि जो इंडस्ट्रीज है चल रही है, हम जाके खुद मतलब कंपनीज में 10-10 घंटे काम करते हैं। जैसे अभी मैंने तो एग्जांपल दिया, हमने धन बना लिया, इंद्रिय भोग कर लिया, कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर वैराग्य आ रहा है? क्या हमें भगवान से प्रीति बढ़ रही है? हम सोच रहे हैं और भोग करेंगे और भोग करेंगे। रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क में 2 नए बिल्डिंग बने हैं। अब देखोगे तो लगेगा ये मतलब एक मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, वीपी है, और ऐसा ऐसा करके पोजीशन है, हायरार्की है, और जो भी है 10 साल से काम कर रहा है, 20 साल से काम कर रहा है, लेकिन वो सोच रहा है मैं आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। कितना तक आगे बढ़ोगे? आपका जीवन कितना 60 साल का है। तो यही अंतर है एक भौतिकतावादी व्यक्ति के में और आध्यात्मिकतावादी में, कि वो सोचता है कि मेरे पास समय कम है, और इसको लगता है नहीं नहीं बहुत आराम है, बहुत सुख है। लेकिन भगवान गीता में बोलते हैं दुखालयम अशाश्वत। ये जो संसार है, भौतिक संसार है, वो दुख का घर है। दुखालय, जैसे विद्यालय विद्या का घर, वैसे दुख आलय दुख का घर है, लेकिन आपको लग रहा है सुखालय। सो दैट इज द प्रॉब्लम, कि जो चीज है, मतलब माया यही तो है, जो चीज नहीं है उसको हम देख रहे हैं, हाँ ये है, तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे सुख मिलेगा हमको। इंडस्ट्रीज का उद्देश्य क्या है? जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे ट्रेन है, रेलगाड़ी है, वो पता नहीं कितने सारे चीज है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इसका क्या उद्देश्य है? जैसे ये लैपटॉप है, ताकि हम इस पे पढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, नई नई चीजें बना सकते हो। नई चीजों से क्या करेंगे? पैसा बनेगा। पैसे से क्या होगा? हम इंद्रिय भोग करेंगे। लेकिन यही लैपटॉप हम कहाँ यूज कर रहे हैं? यू सी, कहाँ यूज कर रहे हैं इसका? यस। सो हम क्या करते हैं? इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। वो चीज से हमको कुछ मतलब लेना देना नहीं है, लेकिन वो चीज हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। प्रभुपाद बोलते हैं तुमको जो बनाना है बना दो, हम उसको भगवान की सेवा में लगा देंगे। और एक प्रकार के आध्यात्मिकतावादी होते बोलते हैं नहीं नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। हम ऐसा नहीं बोलते, दिस इज ऑल टेम्पररी। सो हम उसको क्या करते हैं? भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जैसे आप ये भी तो सोच सकते हो कि भगवान की भक्ति पेड़ के नीचे करो। एक मेरा मित्र आता था पहले, बोलता था ये एसी वसी क्यों लगाते हैं, भगवान का ही बात करना है तो पेड़ के नीचे बैठ के। तो आप आओगे क्या? आप आओगे क्या? अच्छा आरामदायक कुर्सी है तो फिर भी देखो कितना खाली है। ठीक है ब्रो, अभी समय हो गया है, और किसी को कुछ प्रश्न है? सो अगर मैंने कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोला हो या कुछ आपको ना समझ में आया हो तो प्लीज फॉरगिव। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।